Good day everyone. I Tripti Mishra welcomes you on my YouTube channel NCERT Science Mantra. Today we are going to discuss class 9th chapter 1 matter in our surroundings in text questions and their solutions. This is part 2. Already some of the questions, some of the in text questions I have discussed in the part 1 video. In NCERT textbook, page number 9, question number 1 is given. Convert the following temperature to Celsius scale. A 300 Kelvin and B 573 Kelvin. For solving this question, we should recall the relation between the temperature on Celsius scale and temperature on Kelvin scale. This we have discussed earlier also, that temperature on Celsius scale is equals to temperature on Kelvin scale minus 273. So by this formula we can easily convert the temperature on in Kelvin scale to temperature in Celsius scale. So here first one is 300 Kelvin is equals to 300 minus 273 is equals to 27 degree Celsius. Then 573 Kelvin is equals to 573 minus 273 degree Celsius is equals to 300 degree Celsius. So this is the way how to convert the temperature in Kelvin scale to temperature in Celsius scale. If we have to convert the temperature in Celsius scale to temperature in Kelvin scale, then we can again reset this formula like this. Temperature in Kelvin scale is equals to temperature on Celsius scale plus 273. Our next question is, what is the physical state of water at 250 degrees Celsius and 100 degrees Celsius? Now first we will discuss about 250 degrees Celsius. सबसे पहले हम 250 डिग्री सेल्सियस को डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा है, इसलिए 250 डिग्री सेल्सियस पे पानी हमेशा गैसियस स्टेट में हमें मिलेगा. सो द आंसर विल बी वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट. नाउ सेकेंड वन, 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो बॉयल होना शुरू होता है. बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है. और जब तक पानी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं मिलती है, तब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड स्टेट में रहता है. जब उसे हम और हीट देते हैं तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज हो जाता है, लेकिन उस वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है. सो वी कैन से दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ states, liquid and gaseous. So what we have to write here, at 100 degree centigrade Celsius water can exist in both liquid and gaseous form. At this temperature, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water start changing from liquid state to gaseous state. Question number 3 on page number 9 is, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? किसी भी सब्सटेंस के लिए जब स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, उस दौरान जो भी हीट एनर्जी दी जाती है, वो चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट पे दे रहे हो या बॉइलिंग पॉइंट पे, वो सारी हीट एनर्जी
पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए काम में आ जाती है और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के काम में आ जाती है। और इसलिए जो भी हीट एनर्जी दी जाती है वो टेम्परेचर बढ़ाने में काम नहीं आती है, और इसलिए हम उस एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा हो सब्सटेंस तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सो हेयर इट इज latent due to the latent heat. So and the temperature remains constant. So what we have to write in the answer? During a change of state, the temperature remains constant. This is because all the heat supplied to increase the temperature is utilized as latent heat in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Therefore this heat does not contribute in increasing the temperature of the substance. Now question number 4 is suggest a method to liquefy atmospheric gases. वायुमंडलीय गैसों को लिक्विफाई करने के लिए हमें एक मेथड सजेस्ट करना है। तो वायुमंडलीय गैसेस जो हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनको लिक्विफाई करने के लिए हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, दिस इज द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो गैसेस कंप्रेस्ड होती हैं और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, जिनकी वजह से उनका बीच अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और धीरे धीरे उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बॉन्डिंग होती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही जब गैस को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, तो lot of heat is also produced. So while applying pressure to liquefy gases, it is necessary to lower the temperature. जब हम गैस को प्रेशर डालते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, और उस प्रोड्यूस्ड हीट को कम करने के लिए हमें टेम्परेचर कम करना होता है। तो प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। The next question on NCERT textbook, page number 10, question number 1 is, why does a desert cooler better on a hot dry day? एक hot dry day पे desert cooler अच्छा ठंडा क्यों देता है? तो यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो hot और दूसरा dry। तो पहले हम hot का फैक्टर डिस्कस करते हैं। hotness means temperature is more. Hot means temperature is more. So as we know the factor affecting the evaporation, वो factors जो कि evaporation को affect करते हैं, उनमें एक factor है temperature का और एक factor है humidity का। तो जब हम temperature का factor हमने देखा कि जैसे जैसे temperature बढ़ता है evaporation बढ़ता है, और evaporation causes cooling। तो जितना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा उतना ही वो सराउंडिंग से एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो जितना हॉट डे होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कूलिंग भी ज़्यादा देगा। सो दैट्स वाई वी शुड से ड्यू टू द हॉटनेस टेम्परेचर इज इंक्रीज, हेयर द टेम्परेचर फैक्टर इज देयर। देन नेक्स्ट फैक्टर इज ड्राई। ड्राई मीन्स ह्यूमिडिटी इज लेस इन द एयर, ह्यूमिडिटी इज लेस। वायु में जो ह्यूमिडिटी है वो कम है, और ह्यूमिडिटी जितनी कम होती है इवेपोरेशन उतना ही बढ़ जाता है। तो दैट इज द सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव स्टडीड इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो ड्राई डे में
ह्यूमिडिटी कम होती है, उसकी वजह से इवेपोरेशन बढ़ जाता है और इवेपोरेशन बढ़ने से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द particles of the liquid absorb energy from the surroundings to compensate the loss of energy during the evaporation. This makes the surroundings cool. In a desert cooler, the water inside it is made to evaporate. This leads to absorption of energy from the surrounding, thereby cooling the surroundings. Again, we know that evaporation depends on the amount of water vapor present in air or humidity. If the amount of water vapor present in air is less, then evaporation is more. On a hot dry day, amount of water vapor present in air is less, thus the water present inside the desert cooler evaporates more, thereby cooling the surrounding more. That is why a desert cooler cools better on a hot dry day. Question number 2 on page number 10 is, how does water kept in an earthen pot or मटका become cool during summers? एक अर्दन पॉट या मटके में रखा हुआ पानी गर्मियों में ठंडा क्यों हो जाता है? तो जैसा कि हमें पता है कि अर्दन पॉट जो है उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं, उसकी वॉल में लार्ज नंबर में एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स होते हैं जिनसे कि पानी लगातार बाहर आता रहता है, कुछ मात्रा में पानी लगातार बाहर आता रहता है पॉट से और साथ में इवेपोरेट होता रहता है. और इवेपोरेट होने के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो अर्दन पॉट से लेता है और पॉट के अंदर वाले पानी से लेता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम हो जाती है और अर्दन पॉट में जो रिमेनिंग वाटर है वो लॉस ऑफ हीट की वजह से ठंडा हो जाता है. सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द आंसर दैट वी विल डिस्कस हियर नाउ. व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, the particles of the liquid absorb energy from the container to compensate the loss of energy during evaporation. This makes the remaining water cool. There are some pores in an earthen pot through which the liquid inside the pot evaporates. This evaporation makes the water inside the pot cool. In this way, water kept in an earthen pot becomes cool during summers. Question number 3 on NCERT textbook page number 10 is, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? जब हम अपनी हथेली पर कुछ मात्रा में एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम डालते हैं तो हमारी हथेली को ठंडक महसूस क्यों होती है? एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ये सभी वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब जो इजीली वेपर में चेंज हो जाते हैं और जब हम इनको हथेली पर लेते हैं तो ये रैपिडली बहुत फास्टली इवेपोरेट होते हैं और उसके लिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं हमारी हथेली से और सराउंडिंग से, और इसी वजह से जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी तो उसी वजह से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उन्होंने एब्जॉर्ब करी और जिसकी वजह से हमारी हथेली को ठंडक महसूस होती है, टेम्परेचर डाउन होता है और हमारी हथेली से हीट का लॉस होता है और हम कोल्डनेस फील करते हैं. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल on our palm, it evaporates. During evaporation, particles of the liquid absorb energy from the surrounding or the surface of the palm to compensate for the loss of energy, making the surrounding cool. Hence our palm feels cold when we put some acetone or petrol or perfume on it. Question number 4 is, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup? हम कप की बजाय सॉसर से गर्म चाय या दूध जल्दी क्यों पी पाते हैं?
तो जैसा कि हम जानते हैं कि गर्म चाय या दूध जो है वो अगर कप में लिया जाए तो कप का जो सरफेस एरिया है वो कम है। यहाँ पे एक और फैक्टर जो हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन में, वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। तो जब गर्म चाय या दूध कप के अंदर है तो उसका सरफेस एरिया कम है और उसकी वजह से सरफेस इवेपोरेशन कम हो पाएगा और वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए हम उसको इजीली नहीं पी पाएंगे या जल्दी नहीं पी पाएंगे। जबकि अगर उसे सॉसर में लिया गया है तो उसका सरफेस एरिया कप के कंपेयर में ज़्यादा है, और जैसे ही उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है वहाँ इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है, और फास्टर इवेपोरेशन से उतना ही कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, उतनी ही जल्दी चाय या दूध ठंडी हो जाती है और हम उसको जल्दी पी पाते हैं। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, ए लिक्विड हैज़ ए लार्ज सरफेस एरिया in a saucer than in a cup. Thus, it evaporates faster and cools faster in a saucer than a cup. For this reason, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. Now, question number 5 is, what type of clothes should we wear in summers? गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? तो जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि गर्मियों में हमें ज़्यादातर कंफर्टेबल और ठंडे रहने वाले कपड़े पहनने चाहिए, और ऐसे कपड़े या ज़्यादातर क्या होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं। गर्मियों के दौरान हमें पसीना बहुत आता है, और ये पसीना जो है वो इसमें मेनली लिक्विड वाटर होता है ना, तो जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, तो ये अच्छे से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्किन पे नहीं रहने देते, क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसकी वजह से स्किन से स्वेट हट जाने से इचिंग नहीं होती है, और साथ ही ये एब्जॉर्ब करने के बाद एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के इसको इवेपोरेट भी कर देते हैं, और जब ये इवेपोरेट होता है तो उसकी वजह से हमारे आसपास के कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, तो हमें ठंडक का भी अनुभव होता है। सो व्हाट वी हैव टू राइट इन द आंसर, दैट वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स। ड्यूरिंग समर्स वी स्वेट मोर। On the other hand, cotton is a good absorber of water. Thus, it absorbs sweat from our body and exposes the liquid to the atmosphere, making evaporation faster. During this evaporation, particles on the surface of the liquid gain energy from our body surface, making the body cool. So, that is the reason why we should wear cotton cloths during the summers. So friends, now we completed all the in-text questions of NCERT textbook chapter number 1. Half I have discussed in part 1 video, and remaining half I discussed in this part 2 video. Now, if it is beneficial for you, please like the video and share the video with your other friends so that they can also get the benefit. And most important, subscribe my YouTube channel and also press the bell icon so that as I will upload my new video, you will get the notification. I have also provided the link of other class 9th videos in the description box, so you can go to watch the other videos of class 9th by getting the link in the description box. Thank you.